Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you all? Hope everyone is fine. Well, so this week I'm going to continue for all the IIT students, and the chapter that I am going to deal is nothing but Newton's laws of motion. This chapter is very interesting chapter, and you can say in a simple way that this is the heart of physics. It's the heart of physics. If you are able to understand this chapter, in many of the remaining chapters, this particular term will be utilized more and more. Now coming back to this chapter, before having the introduction, I will make you remind that earlier when I took you the classes in one of the doubts clarification where tensional force I was giving you the idea and I was giving you the normal force, all those things. I hope you remember, right? तो वो पूरे जो concepts हमने वहां पर मैंने आपको कहा था वो इस chapter में आप deal करने वाले हो. And maximum of the questions में we will be having this complete topics, and this complete topics utilization in further chapters of your physics. So let's start with the concept Newton's laws of motion without making any without wasting our time. So first, before that, you just inform me in the message that are you able to listen my voice clearly, and meanwhile is the video clear to you? Because if I start and in between if you face any problem, so we will be having a problem. And if any Charminar student is there, you just take कभी भी आप अगर आप reply कर रहे हो, you write there @CHMNR @CHMNR बोल के डाल दीजिए, ठीक है ना? Because parallelly आपका जो है ना फिजिक्स की क्लास भी चल रही है. Okay, fine. This chapter is going to be very interesting. नहीं, आप कुछ भी टाइप करना चाह रहे हो तो @CMNR बोल के टाइप कर जो है ना आप आगे का स्टेटमेंट टाइप करिए, ठीक है ना? थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जो है ना पैरेलली वहां पर महमूद सर भी क्लास ले रहे हैं बाईपीसी स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है ना? राइट, देन विल स्टार्ट विद दिस पार्ट. Yes, motion in a plane is being completed as far as my knowledge. आपको river and umbrella, rain and boat problems I think you have completed. हाँ, लास्ट टॉपिक आपको क्या हुई थी? लास्ट टॉपिक आपको जो हुई थी, लाइक यू कैन इन्फॉर्म मी व्हाट वाज योर लास्ट टॉपिक? रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स हुए थे आपको? रिवर बोट, हाँ. सर्कुलर मोशन हो गया वो तो इसके बाद वाला पार्ट वो तो ठीक है. मोशन इन ए प्लेन आपका खत्म हो गया है. दिस इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके, राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो चारमीनार स्टूडेंट्स तो थोड़ा कंबाइंड है, आप लोग सिर्फ चारमीनार स्टूडेंट्स @CHMNR या CMNR कुछ भी आप टाइप करके आगे का आपका जो भी डाउट है वो आप सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपको देख सकता हूँ आपके डाउट को क्लियरली, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और चैप्टर का असल है नाम लॉज ऑफ मोशन. असल नाम है लॉज ऑफ मोशन. आपको क्लियर दिख रहा है? लेट मी चेक. अच्छा, और ऊपर से लिखा जा सकता है आसानी से, राइट, और अच्छे से लिखा जा सकता है. लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5. Now, whatever you have studied in earlier classes in chapter number 3 and chapter number 4, that is motion in a straight line and motion in a plane, those were the basics for any mechanics chapter. कौन से भी मैकेनिक्स के चैप्टर के लिए बेसिक वाला टर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन. यू हैव स्टडीड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने जो है ना बेसिक डेफिनेशंस लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मोशन एंड ग्रेविटी, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन के बेसिस पे v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square equals to 2as, and the displacement in the n second u plus a by 2 into 2n minus 1. You have studied this already in your motion in a straight line, including the graphs related to this part. और अगर टावर के ऊपर ठहर कर जो है ना अगर बॉल को वर्टिकली प्रोजेक्ट करोगे तो ये पूरे पार्ट विल कम इन मोशन इन a straight line. And if I focus on motion in a plane, you will be studying about the vectors, जो आपके फाउंडेशन क्लासेस में भी ऑलरेडी हो चुका था. And you have also studied the projectile motion concept there, and आपने जो है ना रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट भी वहां पर किया है, including the circular
motion part. Now we are going to start with a very new and interesting chapter. तो आप अपने लैंग्वेज में ये समझ जाइए कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज अ हार्ट ऑफ फिजिक्स वी कैन से. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझने आ गया तो फिजिक्स में आके आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी. तो आज की आधी से ज्यादा क्लास हम जनरल डिस्कशन के ऊपर करेंगे. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर इन अ प्रैक्टिकल वे. पूरा प्रैक्टिकल वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा. स्टार्टिंग पार्ट इज कंप्लीटली थ्योरी है और उसको प्रैक्टिकल वे में हम समझेंगे इंशाल्लाह. Okay now, so let's start with this part, laws of motion. That means we are going to study, you have studied what do you mean by the term motion. Motion means nothing but the changing, agar bookish language ke hisab se definition dekhoge, change in position of an object with respect to time. Object ka position time ke hisab se jo change hota hai usse hum motion kehte hain. Okay na, but when I am talking about yahi motion ko agar hum short way mein as an IITian background agar aap kahoge to we called it as movement. Okay na, but actual definition is what? Change in position of an object with respect to time. यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना टाइम के हिसाब से. पहले मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, फिर मैंने हटाया है, फिर यहाँ रखा है, फिर हटाया है, यहाँ रहा है, तो टाइम के हिसाब से क्या ये पोजीशन चेंज हो रहा है? हाँ बिल्कुल चेंज हो रहा है. तो कैन आई से दिस पर्टिकुलर मार्कर इज इन मोशन? बिल्कुल मैं इसे कह सकता हूँ दैट दिस पर्टिकुलर मार्कर इज इन मोशन. व्हेन दिस मार्कर इज इन मोशन तो इसके अंदर कुछ लॉज है, वो लॉज हम यहाँ पर डील करने वाले हैं. ठीक है ना. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू गो इनटू दिस चैप्टर, एज पर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू वी से एरिस्टोटल फॉलोसी. एरिस्टोटल फॉलोसी है क्या? चलिए उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एरिस्टोटल फॉलोसी? एरिस्टोटल तो साइंटिस्ट थे, ही वाज आल्सो वन ऑफ द फिजिसिस्ट, बट उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था. व्हाट ही सेड दैट इफ अ बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन तो उसके ऊपर एक कंटिन्यूअस फोर्स should be applied. अब ये तो स्टेटमेंट मैंने कहा है, you try to understand this statement in our language. Like if a body is in motion, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया, जैसा मैंने मार्कर को स्लोली मैं मूव कर रहा था. ओके ना. और if you were just dragging this part, तो अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी मोशन में होना है, if a body wants to be in motion, Aristotle has given the statement that there should be one external force. अब आप लॉजिकली सोचिए, अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी को मूवमेंट में रखना है तो क्या एक्सटर्नल फोर्स होना जरूरी है? इन सम ऑफ द केसेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, बट इन सम ऑफ द केसेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. तो चलिए मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. यू कैन सी द फैन वेयर एवर यू आर सिटिंग. ओके ना, आप जहां कहीं भी बैठे हुए हो वो रूम में, यू जस्ट सी द फैन. इज इट इन मोशन? हाँ बिल्कुल इट इज इन मोशन. सो क्या उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है? नो, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड. ओके ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. सो एरिस्टोटल स्टेटमेंट वाज दैट कि इफ एनी बॉडी इज इन मोशन there should be an external force and that too there must be an external force. उन्होंने स्टेटमेंट में दिया था. तो फर्दर and many of the people accepted that yes it may be. एक तकरीबन जो है ना पास्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 500 years तक लोग यही समझते थे कि मोशन, अगर बॉडी को मोशन में रहना है तो एक्सटर्नल फोर्स होना ही होना है. बट ऐसे तो रियलिटी में इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये गलत है. सो अब अपन लाइफ में अभी देख रहे हैं हमको गलत दिख रहा है, बट वहां पर 500 years, more than 500 years it was expected by the whatever the people they were used to live in those days in 16 AD and 17th century and 16th century. The people used to think about that part. But later on Galileo came into existence and Galileo performed one experiment and उन्होंने उस experiment से बताया है कि external force रहने की जरूरत नहीं है. तो what was the experiment of Galileo? We will see this part. ठीक है ना. So now I am considering NCERT also, I am considering advanced level also. मैं NCERT level, basic level से पूरा advanced mains level या advanced level तक जाऊंगा मैं. ठीक है ना. तो अभी basic, अभी आप first time पढ़ रहे हो तो I am going right from the basic to the high level. ठीक है ना. So जब मैं कहूंगा तभी आप मेरे से doubts पूछिए. ठीक है. Now coming back to the point, let's start with this part. Aristotle fallacy में you can write here, according to Aristotle, I'm writing here, मैं starting के कुछ points आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ. According to Aristotle, a body should be, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, that's why I'm writing here. Okay ना. So now according to Aristotle, a body should be, if a body is in motion, if a body is in motion, then there is an external force, then there is an external force acting on it.
देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ओके ना। तो यानी कि बॉडी जब कभी भी मोशन में रहेगी तो वहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होना जरूरी है। हु गेव दिस स्टेटमेंट? एरिस्टोटल। बट लेटर, यहां पर आप और एक पॉइंट लिख सकते हो, बट लेटर दिस स्टेटमेंट वाज प्रूव्ड रॉन्ग। दिस स्टेटमेंट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, वाज प्रूव्ड रॉन्ग, ओके ना, व्हाट्स प्रूव्ड रॉन्ग, दैट्स इट। स्टार्टिंग का थ्योरी थोड़ा सा मैं लिखूंगा, उसके बाद आई विल डिक्टेट यू। स्टार्टिंग चैप्टर कंप्लीटली थ्योरी है और इसमें मैं अभी आपसे डाउट्स नहीं पूछ रहा हूं, बिकॉज अभी अभी हमारे को ये थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट होने दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओके। देन आई विल आस्क यू द डाउट्स, आपके जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हो। नाउ लेट अस गो विद दिस पार्ट। तो ये एरिस्टोटल फॉलिसी सबको समझने आ गई है। पॉलिसी क्यों कहा गया है? कि क्योंकि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है, दैट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। नाउ गैलीलियो केम इनटू एग्जिस्टेंस। व्हाट इज दैट? गैलीलियो केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड नाउ ही गेव वन स्टेटमेंट. What he gave one statement, but before giving the statement he performed one experiment. What was that experiment? उन्होंने एक टेबल को लिया था, he took one table, ठीक है ना, and on this table what he did, he just kept one wooden plank, ऐसा inclined plank, और ये हमारा ground है, समझ जाइए, ठीक है ना। he took one wooden plank. Now अब what he did, he just kept one ball here, यहाँ पर उन्होंने एक spherical ball यहाँ पर रखा है. Now what will happen? Obviously this ball will go to the downwards, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट हैपेंस, एज इट इज गोइंग डाउन, जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यस और नो? इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। सो एज इट इज गोइंग डाउन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सो एज पर द व्हाटएवर द एरिस्टोटल सेड कि जैसे ये मोशन में रहेगा तब तक इसके ऊपर फोर्स रहेगा। यहाँ पर जो है ना गैलीलियो को कुछ हद तक सही दिख रहा था उनका स्टेटमेंट। But now Galileo, he is also one of the great physicists. So what he did, he changed the way, because एक ही statement देना हो तो उसके ऊपर कई बार जो है ना रिसर्च कर कर statement देना पड़ता है. So based on that what he did, he just changed the experiment, यानी कि उन्होंने experiment को change किया. अब यही टेबल को उन्होंने क्या किया, सेकंड वाला केस आई एम ड्राइंग हियर ओनली विद अनदर मार्कर, बॉल को उन्होंने यहाँ पर रखा सेकंड वाले केस में. पहले वाले केस में उन्होंने बॉल को कहाँ पर रखा, टॉप पोजीशन पे, where the ball was flowing was going completely down, और जैसा ये नीचे जा रहा था उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी. It will be better if I go with the second case. It will be better if I go with the second case. Now you take this part as case 1, your experiment 1 बोल के भी ले सकते हो. Now what he did, now second experiment he took, and second experiment में उन्होंने क्या किया, okay मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ. So this is nothing but what, same वही टेबल को उन्होंने जो है ना ऐसा वुडन प्लैंक यहाँ पर रखा है और बॉल को ही जस्ट थ्रोन अपसाइड. तो ये वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी v से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v एट द टॉप साइड, आगे जाने के बाद क्या होगा ये तो आपको भी मालूम है. एज दिस बॉल गोज ऑन अप एंड अप एंड अप, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस. ये बात हमारे गैलीलियो को हजम नहीं हुई, right? So this was not accepted by Galileo, and what he said is basically here, when we are going down its velocity is increasing, when we are going making the ball throwing upwards, so it is going, its velocity is increasing. So if the velocity, sorry, here velocity is decreasing, if the velocity is decreasing, does the Galileo statement is correct? No, बिकॉज गैलीलियो ने जो है ना कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करने के लिए कहा है. जब कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करेगा तो बॉडी मोशन में रहेगी, अगर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी, उन्होंने कहा है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? अब जब हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, थोड़ी दूर तक जा रहा था, फिर यहाँ पर रेस्ट पे आ जा रहा था. तो यानी कि ये दो स्टेटमेंट्स में उन्होंने कंफ्यूजन में रखा अपने आप को. एंड देन आफ्टर दैट फाइनली ही टुक अनदर एक्सपेरिमेंट, वहां से उन्होंने डेफिनेशन दिया और यहाँ से हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट होता है. हियर फ्रॉम हियर आवर real chapter starts. And what was that experiment? What he did, he took the same table, दो inclined planes उन्होंने लिए हैं. He took how many inclined planes? 2 inclined planes he took, okay na. And what he did, he made the ball to move with a velocity v, okay na. So when this particular ball was moving with a velocity v and it was coming here, and again the ball was going with a velocity v right over here. Are you able to understand? फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, ये एग्जामिनेशन में एज एन आईआईटीएन यू मतलब आईआईटी के एग्जाम में ये नहीं आता, बट ये एनसीईआरटी में बेसिक चीज है. तो एनसीईआरटी में रहने की वजह से आई एम टेकिंग दिस अंडर कंसीडरेशन. तो ओवरऑल मोटो मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में उतना इंटरेस्टिंग नहीं देखा, लेकिन जैसा ये गैलीलियो का नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट से बहुत इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट हैपेंस, तो ये जो हाइट से यहाँ पर जो हाइट से गिर रहा था, बॉल को हम छोड़ रहे थे, तो दिस वाज गोइंग विद द सेम वेलोसिटी एंड वही हाइट पे जाके ये क्या हो रहा था, रेस्ट पर आ रहा था। Are you able to understand? Same height पर. Then here another confusion he was getting. Then finally what he did, the final part, उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ से inclined plane लेकर उन्होंने इसे drop किया है, and he dropped this particular ball with a velocity v. उन्होंने ड्रॉप किया है। तो नाउ अब क्या होगा, ये यहां से जाने के बाद इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। Are you getting my point? When it was going in this direction, so he gave one statement. He said perpetual motion. परपिचुअल मोशन उन्होंने कहा है। परपिचुअल मोशन का मतलब क्या है, जब उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे डिक्रीज होते जाएगी, इट विल कम टू रेस्ट पोजीशन. As its velocity decreases, it will come to rest position. If its velocity increases, it remains in that position only. And finally, he gave the statement for inertia. उन्होंने एक concept को introduce किया है, उसे उन्होंने कहा है inertia. एंड परपेचुअल मोशन के बाद उन्होंने यहां से हमारा असल चैप्टर स्टार्ट होता है, इनर्शिया बोल के उन्होंने नाम दिया है। तो इनर्शिया का मतलब होता है द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी विच एग्जिस्ट, यानी कि विच अलाउज द बॉडी टू बी, यानी कि बॉडी की एक एबिलिटी जो क्या देती है, या तो मोशन में रहने के लिए रखती है या तो हमारे को रेस्ट पे रखती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू हैव आइदर इन मोशन और रेस्ट इज सेड टू बी इनर्शिया। उससे हम इनर्शिया कहते हैं, यानी कि एक एबिलिटी बॉडी की ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। तो वो जो एबिलिटी, जो रेस्ट में रहने वाली एबिलिटी है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। अब आप अपने फैन को देख लीजिए, अगर फैन मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। तो ये मोशन के पोजीशन पे रहने के लिए जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी को इनर्शिया कहा जाता है। एंड ये पूरा ओवरऑल व्हाट एवर यू हैव स्टडीड हियर, वो खाली जस्ट एन ओवरव्यू है, बट द मेजर थिंग, जो मेजर थिंग है, द मेजर डेफिनेशन इज नथिंग बट इनर्शिया. Now you can reply your doubts, whatever the doubts you are having. अभी मैं आपके doubts order में देखता हूँ. Now you can send your doubts please, whoever the Charminar students are there. Sir. Yes, now you can ask your doubts. Okay, please repeat inertia. Yes, you have to continue in your regular notes as usual. Inertia part में फिर से repeat करता हूँ, ठीक है? Right, let's start with this part. Inertia. Inertia का और हम डिटेल करने वाले हैं. Let me say what do you mean by the term inertia. So inertia is nothing but the ability of the body to remain either in the state of rest or in the state of motion. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रहती है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, until and unless, जब तक इसके ऊपर आप फोर्स नहीं अप्लाई करोगे वो तब तक रेस्ट पे ही रहेगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई बॉडी, अगर जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, अब आप क्लास सुन रहे हो, राइट? सो नाउ अब आप क्लास सुनते वक्त आपको जो है ना पानी की जरूरत होती है, आप पानी पीना चाहते हो. सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी टेकिंग द वाटर बॉटल एंड यू विल बी कीपिंग एट वन कॉर्नर, ओके ना, जिससे आपको पानी की प्यास लगेगी, आप कंप्लीटली उसको जो है ना पियोगे. सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, द वाटर बॉटल इज केप्ट एट रेस्ट पोजीशन. अब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे. हाँ या ना? Yes or no? So until and unless you won't apply an external force on that part, that body remains in rest. ये जो रेस्ट में रहने वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में इनर्शिया कहते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे फिजिक्स की, मैकेनिक्स की लैंग्वेज में एक तो रेस्ट तो कहते ही हैं और दूसरा जो है ना वो उसको इनर्शिया भी कहते हैं. अनदर थिंग, अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी जो है ना मोशन में ही है, लेट अस टेक अ बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम योर रूम, वेयरएवर यू आर लिसनिंग द क्लास, वहां पर आप फैन को देख लीजिए. आपने एक बार स्विच ऑन कर दिया, ओके, एज यू स्विच ऑन दैट पार्ट, तो वो फैन कंप्लीटली क्या है, किसमें है, मोशन में है. अब वो कब तक मोशन में रहेगा? अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप जो है ना उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, यानी कि स्विच के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, तब तक वो मोशन में रहेगा. सो ये जो मोशन में, या तो अ बॉडी कंप्लीटली आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ बॉडी कंप्लीटली आइदर इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो उसे हम इनर्शिया कहते हैं. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट?
अभी समझने आया है? रिप्लाई करिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं इनर्शिया के बारे में। ओके, आई गिव यू द डेफिनेशन, आप खाली उसके बाद कह लीजिए गैलीलियो एक्सपेरिमेंट बोल के लिख लीजिए। नो, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, खाली गैलीलियो। आई होप यू हैव रिटन दिस पार्ट, फिर गैलीलियो बोलकर लिखकर जस्ट फॉर द नेम से आप ये डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको इनर्शिया का डेफिनेशन कहूंगा। आई एम गिविंग 1 मिनट टू कॉपी दिस पार्ट। मेरे पास थोड़ा फास्ट करने की आदत है, तो फटाफट से आप इसको जो है ना ड्रॉ कर लीजिए एंड प्लीज मेंटेन गुड नोट्स। हाँ, मैं इनर्शिया का डेफिनेशन आई विल डिक्टेट यू, प्लीज डू दिस पार्ट। राइट, तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन कहता हूं। The inability of the body, the inability of a body, the inability of a body, this inability of a body, मैं लिख ही देता हूं, inability of a body to change its state, to change its state of rest, state of rest, or state of rest or motion by itself, by itself. The inability of a body to change its state of rest or motion by itself. Another important point मैं आपको कहता हूँ, याद रख लीजिए, inability बोले तो जिसके अंदर ability नहीं रहती जो अपना जो है ना state change करे। state change करे मतलब क्या, तेलंगाना से आंध्रा, आंध्रा से तेलंगाना, वो नहीं। state मतलब क्या, motion से rest, rest से motion। तो जिसके अंदर वो काबिलियत नहीं रहती है तो वो प्रॉपर्टी को हम inertia कहते हैं। Did you understood? Is everyone clear with inertia? Now we are going to start with an interesting chapter, interesting पार्ट। इनर्शिया कितने टाइप्स का होता है और व्हाट इज दैट, इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो शैल आई रब द कंप्लीट बोर्ड? हाँ या ना, फटाफट से रिप्लाई करिए। शैल आई रब द कंप्लीट बोर्ड? फाइन, चलिए। नाउ यू राइट डाउन टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। वेरी इंटरेस्टिंग वन। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग है और रियलिटी में उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अब आप खुद एग्जांपल्स मुझे बताना है। व्हेन आई एक्सप्लेन दिस कंप्लीट पार्ट यू हैव टू से मी। ये चैप्टर स्टार्टिंग में थियोरेटिकल है और आगे न्यूमेरिकल भी बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं इसके, ओके ना। नाउ आई होप यू हैव रिटन द टाइप्स ऑफ इनर्शिया, आपने लिखा होगा हेडिंग में। सो प्लीज राइट ऑन द साइड हेडिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। सो इनर्शिया कितने टाइप का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो पहला वाला आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए अब हम इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of rest. Second one is what? Inertia of motion, inertia of motion. And third one is nothing but inertia of direction, inertia of direction. चलिए one by one we will try to understand this part. What do you mean by the term inertia of rest? तो चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से एक बताता हूँ। inertia of rest में एक सिंपल तरीका है। I'll explain you this part with respect to one of the example. Many of you are familiar of riding the bike. आप सब लोगों को गाड़ी चलाने आता है। If the girls are there, वो लोग पीछे बैठते हैं अपने father या brother के पीछे। So now it's an interesting one. Listen very carefully.
So when you go and sit on the back side of your, suppose your friend or father or your brother is about to ride a bike, or you want to go somewhere else, okay na, and your father or brother, suppose एक person x है, he is sitting on the bike and he is about to move, तो person y या आप अपने आप को consider कर दीजिए, you went and you sat on the back side of a bike. अभी आप बैठे भी नहीं हो, सडनली जो पर्सन चला रहे हैं उन्होंने सडनली गाड़ी लेकर निकलेंगे, तो आपको क्या होगा, एक झटका लगता है, यस सर नो, झटका लगता है, तो आप कहां पर गिरते हो, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुका है, वे डू यू फॉल, यू विल फॉल बैकवर्ड, उसका रीजन भी मैं बताता हूं, यू विल फॉल बैकवर्ड। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, नाउ लेट अस कंसीडर द, वापस हम जो है ना पीछे अपने ये जो भी मैंने स्टेटमेंट को कहा है उसको मैं पीछे फिर वापस जाता हूं। सपोज अब आपका जो पर्सन जो चलाने वाले उन्हों तो बैठे हुए हैं और आप जाकर अभी अबाउट टू सिट, ठीक है ना, यू आर अबाउट टू सिट, चलिए आप जो है ना वहां पर फुटबोर्ड पे पैर रखकर जो है ना उठ के ऐसा पैर उठाकर बैठने वाले हैं, एंड ऑलमोस्ट यू आर अबाउट टू सिट, सडनली गाड़ी आगे निकल गई है, ओके ना, या फिर आप कंप्लीटली बैठ ही गए हो और सामने चलाने वाले जो है ना एक्सेलरेट जरा ज्यादा दे दिए, तो आप पीछे बैठे हो तो ऐसा हो जाते, होता नहीं होता, यस, वो यहां से ही रिलेट होता है। व्हाई इट हैपेंस, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इनिशियली शुरुआत में द लोअर पार्ट ऑफ योर, अब हम ऐसा कंसीडर करके चलेंगे कि आप कंप्लीटली पीछे बैठे हुए हो, ठीक है ना, आप कंप्लीटली पीछे बैठे हुए हो और सामने जो पर्सन चला रहे हैं उन्होंने सडनली एक्सेलरेट किया है, एक्सेलरेट मतलब रेस को बोल के जो रहता है ना वैसा उन्होंने रेस देकर निकाला है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट अब होता क्या है, व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग दैट पार्ट और आप सडनली आपको झटका लगता है और पीछे जाते हो, द स्टार्टिंग में द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, बॉडी का नीचे वाला हिस्सा बाइक से कॉन्टैक्ट में है। Are you getting my point? First I will say you in English, उसके बाद मेरे को इंग्लिश में बोलना बहुत अच्छा दिखता in comparison with our हिंदी अपनी लैंग्वेज में। First I will say you in English. The lower part of the body is in contact with the bike where the bike was initially at rest position. हाँ या ना? The bike was initially at rest position, but the upper part of the body is not in contact with any part of the bike. अपने ऊपर वाला हिस्सा बाइक से कुछ कौन से भी हिस्से से कांटेक्ट में है नहीं है, तो ड्यू टू दिस रीजन जब बाइक जो है ना मूव होना शुरू होती है तो उसके साथ साथ रिलेटिवली द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आल्सो मूव्स विद रिस्पेक्ट टू द बाइक, whereas अपर पार्ट क्या होता है, पीछे वैसे ही रह जाता है। That is nothing but inertia of rest. Did you understood this concept? यही एग्जाम्पल को आप बस में ले लीजिए, सपोज मैं बस में ऐसा ठहरे हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस इन अ बस, और बस इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे, किस पे है, रेस्ट पे है, और सडनली ड्राइवर क्या करे, वो तो जिप बोल के निकाले, तो मैं क्या होता हूँ, ऐसा होके फिर ऐसा सामने, राइट और रॉन्ग, व्हाई डू आई विल गो इन दिस वे, जैसा मैं पीछे जा रहा हूँ तो माई अपर पार्ट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द बस, वेयरएज माई लोअर पार्ट जो है ना मेरा फुट किससे कॉन्टैक्ट में है, बस से कॉन्टैक्ट में है। सो दैट्स वाई जब बस रेस्ट पे थी तो मेरे पैर भी जो है ना बस को टच हो रहे हैं तो वो भी रेस्ट पे रहेंगे। अब जब बस मोशन में आएगी, मूवमेंट में आएगी, तो मेरे पैर भी जो है ना रिलेटिवली टू द बस उसके साथ ही चलेंगे, बट ऊपर वाला पार्ट मेरा ये जो हिस्सा है इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनी पार्ट ऑफ द बस, सो दैट्स वाई इट विल फॉल बैकवर्ड। कितने स्टूडेंट्स को ये पार्ट को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। शुरुआत में रेस्ट में था, सडनली क्या हो गया, मोशन में आ गया, जैसा मोशन में आएगा तो हमारा अपर पार्ट का होगा, पीछे होगा। अगर यही क्वेश्चन को चेंज कर कर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, सपोज एक जो है ना प्रीवियसली आज क्वेश्चन है, ए राइडर, हॉर्स राइडर इज सिटिंग ऑन द हॉर्स, इनिशियली द हॉर्स वाज एट रेस्ट पोजीशन, but suddenly the horse starts moving forward, where does the horse rider sitting on the horse will fall forward, fall backward, remains as usual, none of the above, so everyone knows ये पीछे की तरफ गिरेगा। This is an example of inertia of rest। कितने स्टूडेंट्स को समझने आया है inertia of rest? This is completely theory, ये completely theory है, ये completely theory है। What is the distance between these two height h1 and h2? That is nothing but, वो उसको अपने को लास्ट वाले किसी ने कहा है कि हाइट h1 और h2 क्या है, h1 h2 हमारे को हाइट से लेना देना नहीं है, that's why I'm not taking that part under consideration। ठीक है ना, सबको समझने आया है? इट्स कंप्लीटली, बहुत ज्यादा लाइटां खुले हुए भाई यहाँ पे, हाँ वेट डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन मैं देता हूँ, पूरा भरे हुए है यहाँ पे, पूरा यहाँ लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है बोलता हूँ, बट एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब क्वेश्चन बोलेंगे तो आपको आंसर आना जरूरी है, ओके ना, क्लियर, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट?
क्या आपको समझने आया है? अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा, माय लिसन माय क्वेश्चन वेरी केयरफुली, वर्ड से देख लीजिए, जो भी अंडरस्टूड भी बोल रहे हैं एट सी बोल के तो भी डाल दो कम से कम, या एट एच बोल के डाल दो, बेहतर है। जो भी चार मीनार वाले स्टूडेंट्स है एट हेच बोल के डाल दीजिए। खाली हेच बोले तो मैं समझ जाता हूँ आप मेरे को ही कह रहे हो, ठीक है ना? राइट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो चार मीनार स्टूडेंट्स है खाली वो एक, ओके ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? नाउ लेट अस गो विद द सेकंड पार्ट। अच्छा, उतना कई को अपन सबसे बेस्ट, अब जरा अपनी लैंग्वेज में आके जरा एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पानी दबा के पड़ा, ओके ना? फुल तेज बारिश पड़ी, ठीक है? तो अब एक दो दोस्त मिलकर क्या करे, तीसरे दोस्त को जो है ना भिगाना चाह रहे हैं, तो उन्ना क्या करे, लेके जाके परनाले के नीचे नहीं डाले, उन्ना लेके जाके क्या करे, बराबर झाड़ के नीचे रख दिया उसको। एक दोस्त पकड़ लिया उसको झाड़ के नीचे, और दूसरा दोस्त जाके झाड़ को हिला रहा है, यस और नो? तो क्या गिरता? वाटर ड्रॉप्स विच आर ऑन द टॉप ऑफ द लीफ, या झाड़ के ऊपर जो भी वाटर ड्रॉप्स है वो नीचे गिरते। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कैसा होता सर ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट? दिस एग्जाम्पल आर माई ओनली प्रिपेयर्ड, जो मैं भी रियलिटी में जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो एग्जाम्पल्स आपके सामने बता रहा हूँ। अब वो कैसे होता है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। कैसे होता है? इनिशियली शुरुआत में तो लीव्स जो है ना रेस्ट पे थे, जैसा आपने झाड़ को हिलाया है वो रेस्ट पे रहेंगे तो वो रेस्ट पे ही रहेंगे। तो झाड़ के हिलने से ये लीफ क्या होता है, रेस्ट पे ही रहता है। झाड़ हट गया या पत्ता हट गया, ये नीचे गिर गया। दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझने आया है आपको? वेरी इंटरेस्टिंग। अरे उत्ता के को और एक अच्छा एग्जांपल, अपने घर में झाड़ू मारते तो वहां पर मैट रहती, तो मैट को अपन ऐसा पकड़ के झाड़ू से टक 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 मारते हैं। बाजा नहीं बजा रहा हूँ, झाड़ू से मार के बता रहा हूँ एक रफ मैट पे। सो व्हाट विल हैपन, मैट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे गिरते, हाँ या ना? दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो भी तो अनदर एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। कैसा? शुरुआत में जो डस्ट पार्टिकल्स थे दे आर एट रेस्ट पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द मैट। जैसा मैंने अपने जो है ना स्वीप से एज आई स्टार्ट हिटिंग, तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या समझ रहे हैं, उनना रेस्ट में ही रहेंगे, और ये मैट क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट? अभी सबको क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग वाले एग्जांपल है। सेम रीजन, अगर आप लेग्स रख के भी नहीं रहे हो तो आई एम जस्ट फोकसिंग, झटका जो लगता है अपर वाले पार्ट में, आपने जो बताया है तो वहां पर क्या होता है सर, अगर अपन लेग्स नहीं रखे सरफेस पर और अगर बस में बैठे हुए हैं तो भी झटका पड़ता है, वो क्यों? लेट अस से यू दैट पॉइंट। आप जो है ना धक्का क्यों पड़ता है, वो तो अपर पार्ट आपका रेस्ट पे ही रहता है। अपर पार्ट आपका क्या रहता है, रेस्ट पे ही होता है। अब आप बैठे हुए हैं तो सम ऑफ द पार्ट इज जस्ट टचिंग टू द बस और नॉट, और वो हिस्सा मोशन में रहेगा। जो हिस्सा आपका जो है ना बस को टच नहीं होगा उस पे झटका लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वो एग्जांपल जो है ना आप ये डस्ट पार्टिकल्स को रिलेट कर लीजिए, और जो है ना आपका मैंने वाटर का मॉलिक्यूल जो वाटर मैंने जो कहा है उससे रिलेट कर ले सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर एवरीवन गॉट दिस? बट दिस इज कंप्लीटली जूम यार, मैक्सिमम जूम करा हुआ है ये कैमरा, ओके ना? मैक्सिमम जूम करा हुआ है, आपको जो है ना राइटिंग खराब हो जाएगी। एनएमपीसी स्टूडेंट्स, हाँ समझने आ गया ना? हाँ बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है नहीं है चैप्टर? हाँ रियलिटी में कहाँ पे भी देखे अपने आप में फिजिक्स लगा लेना, ये वाले चैप्टर से तो पूरा फिजिक्स बनता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना? नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब जाएंगे हम किस वाले पार्ट पे? दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या सबको समझने आया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसे कहते हैं? सो यू आई होप यू हैव रिटन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप सीधा एग्जांपल्स लिख लीजिए, सीधा यू राइट ऑन द एग्जांपल्स प्लीज। जस्ट अ मिनट प्लीज। राइट, तो अब यहां पर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे जो है ना डेफिनेशन, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का तो इनर्शिया का ही डेफिनेशन है, बट एग्जांपल्स में लिख लीजिए। एग्जांपल्स में फर्स्ट वाला एग्जांपल आई एम डिक्टेटिंग यू, फर्स्ट एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल मैं आपको डिक्टेट करता हूं। ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस, राइट ऑन प्लीज। ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस, a person standing in a bus, when the bus is at rest position, a person standing in a bus, a person standing in a bus, when the bus is at rest position, a person standing in a bus when the bus is at rest position, comma, suddenly, comma, suddenly, comma, suddenly the bus moves, suddenly if the bus moves,
suddenly if the bus moves, the person falls backward. Suddenly if the bus moves, suddenly if the bus moves, the person falls backward. The person falls backward. Suddenly if the bus moves, the person falls backward. Suddenly if the bus moves, और थोड़ा स्लो होना है, ठीक है. Suddenly if the bus moves, the person falls backward. हैंड एंड फुट दोनों भी टच नहीं हो रहे ना सर, कुछ भी टच. और ये जरूरी नहीं है, आपकी बॉडी का एक पार्ट तो टच होता है ना उसमें. हैंड एंड फुट टच नहीं हो रहे, वो सेकेंडरी है. वन सिंगल पार्ट तो टच होता. ऐसा थोड़ी सुपरमैन है आप बस में जाके ठहरेंगे तो आपको जो है ना कुछ भी आपका पार्ट टच नहीं हो रहा, तो वहां तो ये लॉज ऑफ मोशन एक्सेप्ट ही नहीं होते. ऐसा थोड़ी है, नहीं ना, सम पार्ट विल बी टचिंग. सो वो वाले केस में झटका तो लगेगा एंड यू फॉल बैकवर्ड. सर अर्थक्वेक के एग्जांपल भी ले सकते हैं क्या? हाँ, अर्थक्वेक का एग्जांपल भी ले सकते हैं, बट वो वाइब्रेशनल रीजन में ले सकते हैं. वन ऑफ द एग्जांपल यू कैन टेक हियर, ठीक है ना. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ ये सुपरमैन स्पाइडरमैन है तो क्या है कि उन लोगों को झटके नहीं लगते. अब वो स्पाइडरमैन भी हवा में थोड़ी रहता, कहाँ उसके भी तो जाले रहते, थोड़ा बहुत झटका लगता. खैर उसको कोने में रख देंगे. अब हम वापस आते हैं. सडनली द बस मूव्स, द पर्सन फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ड्यू टू inertia of rest. सेकंड वाले पार्ट में हम जाएंगे. यू राइट ऑन द. अब दूसरे एग्जांपल्स तो आपको मालूम ही है ना, वो जो मैट का मैंने एग्जांपल दिया उसका मैं पॉइंट नहीं दे रहा हूं. वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, inertia of motion. अब मजेदार है, इसको मैं कैसे समझाता हूं, प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश करता हूं. नाउ यू सी हियर, सपोज दिस इज अवर बस. ये एक बस है और इसके अंदर जो है ना एक बंदा यहाँ पर जो है ना ठहरा हुआ है. सपोज अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बस और उसने जो है ना इस हैंगर को जो है ना कैच किया हुआ है, ठीक है ना. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, अब जो है ना ये बस, वी विल अज्यूम दैट दिस बस इज इन मोशन. ये बस किस में है? मोशन में. यानी कि मैं यहाँ पर बस पर ठहरा हुआ हूँ और मैं मूवमेंट कर रहा हूँ. या फिर बस, मैं सपोज ऐसा जाता हूँ, मैं बस में मैं ऐसा जो है ना ऊपर हैंगर को पकड़ कर ऐसा ठहरा हुआ एंड द बस इज इन मोशन, ठीक है ना. सो नाउ अब क्या होगा, अब यहाँ पे ड्राइवर साहब हमारे क्या करे, व्हाट ही डिड द ड्राइवर, ही जस्ट अप्लाइड द ब्रेक. और फिजिक्स की लैंग्वेज में ब्रेक को अप्लाई करना हो तो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हो, उसे डिसेलरेशन कहते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑफ एक्सेलरेशन. ब्रेक अप्लाई करना मतलब डिसेलरेशन फिजिक्स की लैंग्वेज में. अप्लाइंग द ब्रेक मींस व्हाट? डिसेलरेशन. दिमाग में बिठा लीजिए इस वाले पॉइंट को. नाउ बंदे ने जो है ना, द ड्राइवर हैज अप्लाइड द ब्रेक. सो अब क्या होगा देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ तो मेरा जो लोअर पार्ट है, जैसा बस चल रही है तो लोअर पार्ट भी जो है ना बस के बराबर चल रहा है, ओके ना. और अपर पार्ट भी उसके हिसाब से थोड़ा मैनेज करके चलो भाई बोल के ढकलू बोल के, अब उन्हें भी बैलेंस हो गया कंप्लीटली. नाउ जैसा उन्होंने ब्रेक अप्लाई किया ड्राइवर ने, तो क्या होगा, लोअर पार्ट भी जो है ना बस के हिसाब से रेस्ट पे आ जाएगा. बट अपर पार्ट क्या होगा, आई विल फॉल फॉरवर्ड. गिरता हूं या नहीं. ये पूरे क्वेश्चंस नीट में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल जेई, जम्मू एंड कश्मीर सेट, महाराष्ट्र सेट, एम सेट, के सेट, पूरे ये पूरों में जो है ना इंडिया लेवल के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स में है उसमें ये कॉन्सेप्ट को बस की जगह ट्रेन दिया, ट्रेन की जगह कभी हॉर्स दिया, कभी हॉर्स की जगह कार दिया, बट ही गेव द सेम कॉन्सेप्ट. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो व्हाट हैपेंस टू द पर्सन, द पर्सन विल फॉल फॉरवर्ड. तो जो बंदा ठहरा हुआ है वो कहां पर गिरता है? सामने की तरफ गिरता है. क्यों गिरता है? बिकॉज शुरुआत में उसका जो लोअर पार्ट था किससे था? was in touch with the bus, okay ना. the lower part of that particular person was in touch with the bus, with the upper part was not in contact. so as a result, जैसा बस को ब्रेक अप्लाई किया गया है, बस रेस्ट पर आ गई है, तो यहाँ पर लोअर पार्ट भी जो है ना बस के हिसाब से ही चलता है तो वो रेस्ट पे आ जाएगा. लेकिन अभी ऊपर वाला पार्ट विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? मोशन में ही रहेगा. वो मोशन में रहने की वजह से वी विल फॉल फॉरवर्ड. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्या आपको ये लॉजिक समझने आई है? कितने स्टूडेंट्स को इनर्शिया ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट समझने आया है? राइट कितने स्टूडेंट्स को ये वाला कॉन्सेप्ट समझने आया है? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? So this is an example of inertia of motion. Inertia of motion. ये क्या होता है? Inertia of motion होता है. So please write down their point. तो यहाँ पर मैं रियलिटी में यहाँ पर बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल में. तो ये लोअर पार्ट जो है ना मोशन में, तो ये भी मोशन में रहेगा. अब एज ए रिजल्ट ये वाला पार्ट जो है ना कैसा भी, कंप्लीट पार्ट तो मोशन में रहेगा, लेकिन जब रेस्ट ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तो ये लोअर वाला पार्ट जो है ना मोशन में था, अगर इन्हें रेस्ट में आ गया
तो इन्हें भी रेस्ट में आ जाएगा। जब दोनों रेस्ट में आएंगे तो ये अभी ऊपर वाला पार्ट जो है ना मोशन में ही रहेगा, तो ये थोड़ा आगे रहेगा, तो वी विल फॉल फॉरवर्ड, फॉल फॉरवर्ड। क्या आपको ये लॉजिक समझने आई है? नाउ नेक्स्ट वाला एग्जांपल आई विल से यू, अगर आपको इसका पॉइंट लिखना है, यू राइट ऑन द पॉइंट प्लीज, एंड इवन इफ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम यू कैन ड्रॉ इट। आपका पॉइंट लिख लीजिए। when the person is standing in a bus when the person is standing in a bus when the person is standing in a bus sorry, when the person is standing in a bus and the bus is in motion and the bus is in motion and the bus is in motion when the person is standing in a bus and the bus is in motion, comma, if the bus suddenly stops or comes to rest, if the bus suddenly 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 comes to rest, the person will fall forward, the person will fall forward, the person will fall forward due to, the person will fall forward due to inertia of motion, due to inertia of motion, the person will fall forward due to inertia of motion. Clear? Understood this part? चलिए, किसी ने कहा है अभी भी समझ में नहीं आया, सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ भाई, कुछ भी नहीं है, ये लोअर वाला पार्ट जो है ना रेस्पिर मोशन में रहेगा तो इन्हें भी मोशन में रहेगा, बेसिकली तो पूरा ही मोशन में रहेगा, लेकिन जब ब्रेक अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं या ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो ये वाला हिस्सा उसका रेस्ट पे आएगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जब कार के कोई हिस्से में कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो वो वाला हिस्सा, या बस के कोई कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो वो वाला हिस्सा कहां पर गिरेगा? सामने की तरफ गिरेगा। Did you understood this part? Hence this is the concept related to inertia of motion. Now तीसरे वाले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, which is nothing but inertia of direction. ये पूरा थ्योरी है एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो चलिए अब हम डील करते हैं ये वाले पॉइंट से। अब जरा गौर से देख लीजिए, ये जो बस है ये हमारा ग्राउंड है, यही वाला एग्जांपल लेता हूं। अब ये फॉल फॉरवर्ड फॉल बैकवर्ड सब हटा दे रहा हूं ठीक है ना, राइट। नाउ सी हियर, नाउ ये वाली जो बस है ना कैसे जा रही है? एक्चुअली दिस बस वाज गोइंग स्ट्रेट, ओके ना। सडनली अब बस में ड्राइवर, अब अगर बस ऐसे जा रही है तो मैं भी ऐसे ही मूव हो रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ बस का ड्राइवर ने वहां पर टर्न दिया तो बस ऐसा जाते जाते ये ऐसा ये डायरेक्शन में गई है, ठीक है ना। तो बस के ड्राइवर ने चलाते चलाते उन्होंने टर्न लिया है तो डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन अंदर बैठा हुआ पर्सन का डायरेक्शन कहां पर जाएगा? बस के हिसाब से नहीं जाएगा। द पर्सन्स डायरेक्शन विल गो स्ट्रेट, पर्सन्स डायरेक्शन विल गो स्ट्रेट। अगर ये डायरेक्शन ऑफ बस हो गया तो बंदा जो अंदर बैठा हुआ है उसका डायरेक्शन ऐसे ही जाएगा। इसलिए कभी बस वाला जरा जोर से टर्न लिया तो आप जो है ना बस में या तो ऐसा तो भी होते या ऐसा तो भी होते, होते नहीं होते? यू हैव सीन दैट पार्ट। तो आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता? कोई एक बस के हिस्से को कैच करना पड़ता, तो आप भी जो है ना बस के डायरेक्शन में आ जाओगे। यू विल ऑल्सो कम इन टू द डायरेक्शन ऑफ द बस। अगर बस वाला यहाँ पे टर्न ले रहा है तो आप भी वहीं पर टर्न हो जाओगे, योर बॉडी विल टर्न। और दैट्स व्हाई अब ऐसा नहीं है कि आप बस के बाहर निकल जाते हैं, आप जस्ट आई एम गिविंग यू द रीजन क्यों ये टर्न होते हैं, तो आप अपने आप को वहां पर कैच करना पड़ता है एनी पार्ट ऑफ द बस। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? यानी तो कभी आप आजमा के देखे होंगे, आप ज्यादा टर्न ही ले रहा तो आप ऐसा गिर गए वैसा दिखता तो आप इसको टाइट पकड़ लेते, अगर ऊपर वाले हिस्से में है या फिर अगर बस के कोई कॉर्नर में है, या कार में ही देख लीजिए या ऑटो में देख लीजिए, तो आप ऑटो वाले सडन ऐसा टर्न लिया तो अपन भी ये तरफ गिरते। आई होप यू हैव ऑब्जर्व दिस इज नथिंग बट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो रियल लाइफ में एवरीवेयर ये लॉज ऑफ मोशन यूटिलाइज होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा है। पहले आप ये बताइए इसका एग्जांपल समझने आया क्या नहीं, उसके बाद मैं बकरीद वाला एग्जांपल देता हूं। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? all the mechanism and all the moving objects and animals are the example of inertia of rest. Is this right? Almost, but not exactly, because depending upon the situation and condition you can say. तो ये completely rest पे ही बता नहीं सकते आप, depending upon the situation and condition. एक बस का ही मैं example लेके आपको 3 conditions बता रहा हूँ, तो same वैसे ही कर सकते हो।
यस यू विल बी गोइंग स्ट्रेट, तो आप अपने आप को कर सकते हो। टू कार्स क्रैश, उसमें ब्रेक सप्लाई नहीं होता तो वो भी इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा कि नहीं? अब वो ब्रेक फेल हो गया तो उनकी गलती है। अब दोनों कुछ वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं और आपने रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो दोनों एक दूसरे से ऑब्वियसली जगह नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो क्लैश ही होंगे ना। तो इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया इनर्शिया का कुछ भी ज्यादा रोल नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो एक ही रहेगा, दैट इज इफ द बॉडी इज कंटिन्यूसली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, तो वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। तो वो हमारा एक लॉ है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। ठीक है, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिड यू अंडरस्टूड दिस कंप्लीट एग्जाम्पल? क्या आपको समझने आया है ये वाला एग्जाम्पल? आई विल गिव यू वन मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैंने ऑब्जर्व किया है। डिड यू अंडरस्टूड दिस? फाइन, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो वी विल बी गोइंग इन स्ट्रेट वे, तो हम हमारे को एक बैलेंस करना है। तो ऐसा उत्ता का एक सिंपल, बकरीद में जो है ना, अगर बकरे को काटना है तो अपन क्या करते हैं, छुरी लेके जाके जो है ना वो छुरी तेज कराने लेके जाते हैं, राइट और रॉन्ग? मेनी ऑफ द पीपल हैज ऑब्जर्व, एक रोटर रहता है जिसपे वो जो बंदा जो है ना क्या करेगा, वो छुरी को तेज करता है, राइट और रॉन्ग? जब वो छुरी को तेज कर रहा है, वहां पर क्या होता है, स्पार्क बाहर आता है। स्पार्क यानी कि चिंगारी बाहर आती है। वो चिंगारी का बाहर आना भी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। वो चिंगारी का बाहर आना भी इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कैसे? वो रोटर जो है ना रोटेट हो रहा है, जैसा हम छुरी लेके जाकर रखेंगे तो रोटर भी उसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। किसको? वो पर्टिकुलर नाइफ को। लेकिन आप एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो रोटर इसको रोटेट कर कर इस डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, वहां पर वो बैलेंस नहीं होकर जो है ना, ये इसका फोर्स बराबर लगता है, इसका फोर्स कंटिन्यूसली लगता है। तो इन्हें इसके डायरेक्शन को सक्सेसफुली चेंज नहीं करने की वजह से एक एक्सटर्नली हमको अप्लाई होता है, वो है स्पार्क। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? वो चिंगारी रहती है, वो चिंगारी जो बाहर आती है, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी एक एग्जांपल है। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? सिंपल लैंग्वेज में देखा गया तो छुरी को जब हम तेज करते हैं, तब जो चिंगारी आती है वो किसकी वजह से आती है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्या आपको अभी समझने आया है? क्लियर? एवरीवन गॉट दिस पार्ट? वाटर सर्फिंग भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ही आता है। हाँ, यू कैन टेक एन एग्जांपल। तो क्या हम आगे बढ़ते हैं? शैल वी प्रोसीड फर्दर? इनर्शिया ऑफ मोशन थोड़ा समझ नहीं आया। पूरा इनर्शिया ऑफ मोशन, वो क्या पूरा होने का? इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, आप बेसिकली जो है ना, जैसा इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझने आया है ना आपको, तो उसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन भी रहेगा। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या रहेगा, आप जो है ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पीछे गिर रहे थे, अब इनर्शिया ऑफ मोशन में आप सामने गिरोगे, बस उतना ही है डिफरेंस, और कुछ भी नहीं। ओके ना? डिड यू अंडरस्टूड नाउ? टाइम इज आई थिंक टिल 1 o'clock। पॉइंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, वी विल टेक दिस पार्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन तो आप लिख लिए हो। सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में मैं आपको एक पॉइंट लिखकर जो है ना, लाइक मैं पिक डाल देता हूँ, आप उससे कॉपी कर लीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए उसके लिए, राइट? यू जस्ट लीव 2 लाइंस। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस पार्ट। अब ये जो इनर्शिया, 2 लाइंस छोड़कर आप नेक्स्ट वाला पार्ट लिख लीजिए। ये जो कंप्लीट इनर्शिया वाला पार्ट है, दिस इज सेड टू बी व्हाट, इसे हम कहते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट। ये इनर्शिया वाला पार्ट तो सबको समझने आ गया है। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में, बीइंग एन आईआईटी स्टूडेंट्स, एक कॉइन ग्लास टम्बलर बोल के एक एग्जाम्पल है, यूट्यूब पे कभी आप देखोगे तो मजा आएगा वो एग्जाम्पल। तो वैसे ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर। अब ये क्या होता है, देखिए कुछ भी नहीं, एक ग्लास रखी जाती है, एक कांच की ग्लास, ओके ना। अब उसके ऊपर एक अट्टा रखा जाता है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा जाता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ग्लास एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट बोल के भी मार सकते हो, बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है। बीइंग एन आईआईटी स्टूडेंट ये होना है, ये वाला पार्ट हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आईआईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो ये आपको मालूम होना जरूरी है। जब हम वहां पर क्या करते हैं, व्हेन वी आर जस्ट, हमने क्या किया है, एक ग्लास लिया है, वी टुक वन ग्लास, सी हियर, ये हमारी ग्लास है, और इस ग्लास के ऊपर हमने क्या किया है, एक अट्टे को हमने रखा है, ठीक है ना। वी केप्ट वन, एक व्हाट वी कैन से, वन पैड टाइप वी केप्ट हियर, एंड उसके ऊपर हमने क्या किया है, एक कॉइन को प्लेस किया है।
on that particular part we have placed one coin. So now what exactly happens here? तो ये हमारा जो है ना ये अट्टा है, समझ जाइए, और इसके ऊपर रेड कलर वाला कॉइन है. तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है. अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को पकड़कर खींचोगे तो ऐसा खींचना चाहिए ताकि ये पर्टिकुलर वाला जो पार्ट है ना ये डायरेक्टली कहां पर गिरना चाहिए, अंदर ही गिरता है. ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में एक लॉ, अगर वहां पर इनर्शिया वाला लॉ सही अप्लाई किया जाएगा ना तो ये वाला कॉइन जो है ना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सीधा नीचे गिरेगा. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला एग्जांपल ही लिया जाता है. तो उसको जो है ना कहीं स्टार्टिंग में अगर अपन करने बैठे, मैं भी वही चीज करने गया, आया ही नहीं, वो करने गया ऐसा खींचते जा रहा हूँ, आ रहा नहीं, मेरे साथ ही सिक्का आ जा रहा. तो बाद में मैं रियलाइज करा कि इसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो उस पर्टिकुलर पार्ट को इस तरीके से खींचना है ताकि जो है ना वो पर्टिकुलर पॉइंट को ना हो सके एनी डिस्टर्बेंस. तो बाद में थक के कितना कि उसके ऊपर करने के बाद फाइनली मैं सक्सेस तो नहीं हुआ. इफ यू वांट टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट यू कैन ट्राई, बट हर एक जना ये करता है. मेरे हाथों से तो नहीं हुआ, शायद मेरे स्टूडेंट्स के हाथों से हो जाएगा इंशाल्लाह. सो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट. तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने आया है? ये जस्ट एज एन आईआईटी स्टूडेंट आपको ये वाला पॉइंट मालूम होना जरूरी है. सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द ग्लास कॉइन एक्सपेरिमेंट. नाउ अब यहाँ पर वी विल बी टेकिंग द कॉइन का सेम वाला पार्ट जो आईआईटी के प्रीवियस आस्क क्वेश्चंस में क्वेश्चन है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट. पहले शैल आई रब दिस कंप्लीट बोर्ड? हाँ या ना पहले बता दीजिए मुझे. दिस इज कंप्लीट थ्योरी पार्ट. वन एग्जांपल ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन. मोशन एंड डायरेक्शन का आप ले सकते हो, या तो वो वाला एग्जांपल ले सकते हो और जरा हाई लेवल में मोमेंटम वाला लाकर भी बता सकता हूं मैं. ठीक है, आप ये बस की जगह कोई और एग्जांपल ले लीजिए. ये ग्लास टम्बलर एग्जांपल भी ले सकते हो. अब ग्लास टम्बलर एग्जांपल में आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप इसे पर्टिकुलर पार्ट को खींच रहे हो तो ये जो कॉइन है बेसिकली कहां पर गिरना चाहिए? नीचे गिरना चाहिए. लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ना थोड़ा आगे आएगा. और एक एग्जांपल भी ऐसा भी है, जब आप इसको खींच रहे हो ये थोड़ा आगे आके वो नीचे गिर जाएगा. तो दैट इज ऑल्सो वन. थोड़ा आगे आके नीचे गिरना बोले तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. कभी कभी ऐसा भी होता है, यही वाले पार्ट को पकड़ कर आप खींचोगे, खींचने में आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है. कभी हम अट्टे को ऐसा स्ट्रेट खींचने का थोड़ा क्रॉस कर देते तो वो कॉइन आके नीचे स्ट्रेट गिरता है. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अभी आपको समझने आया होगा. सो दीज आर द एक्स्ट्रा एग्जांपल्स. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. वन ऑफ द प्रीवियसली आस्क्ड एग्जांपल में मैं वन ऑफ द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, पहले यहाँ पर चेक कर लेता हूँ किसी के डाउट है क्या. हाँ, डाइनिंग टेबल पे भी कर सकते हैं. ओके, बट बेहतर है जो है ना क्लास के लिए ही कर दीजिए. वी विल कम बैक टू द पॉइंट नाउ वन पॉइंट आई एम गोइंग टू डील हियर. यू राइट ऑन द पॉइंट ए पर्सन सिटिंग, वहां पे नोट बोल के लिख लीजिए. राइट ऑन द नोट. दीज आर द प्रीवियसली आस्क्ड आईआईटी मॉडल क्वेश्चंस. ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस है तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए. ए पर्सन सिटिंग इन ए ट्रेन, ए पर्सन सिटिंग इन ए ट्रेन, ए पर्सन सिटिंग इन ए ट्रेन tosses a coin. A person sitting in a train tosses a coin. A person sitting in a train tosses a coin. A person sitting in a train tosses a coin. अब कॉइन को टॉस करने के बाद ये कॉइन कहां पर गिरेगा? ऐसे 4 एग्जाम्पल्स है जो अलग अलग पेपर्स में पूछा गया है. एक आईआईटी मेंस में पूछा गया था, एक हमारे एमसेट के पेपर में पूछा गया था, एक मेडिकल के पेपर में. तो वो चारों एग्जाम्पल्स मैं इकट्ठा कर आपको बता रहा हूं. पहला वाला एग्जाम्पल है, अगर ट्रेन, इफ द ट्रेन इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन और ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, तो पॉइंट नंबर 1 में यू राइट डाउन, इफ ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, इफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, अगर ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है, ओके ना, अगर ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है. चलिए मैं यहाँ पर ट्रेन में बैठा हूँ और ट्रेन में बैठे बैठे ट्रेन आके ऐसा मूव हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है. अब सवाल ये उठेगा एक्सेलरेट किससे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सेलरेटिंग पार्ट? तो एक्सेलरेटिंग मींस हर टाइम पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. टाइम का मतलब या तो सेकंड ले सकते हो, या तो मिनट ले सकते हो, या तो घंटा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है ना. सो एट एवरी इंस्टेंट द वेलोसिटी इज चेंजिंग. दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is defined as acceleration. तो यानी कि
हर एक सेकंड में या हर एक मिनट में या हर एक इंस्टेंट में, बेहतर है एट एन एनी इंस्टेंट, वो पर्टिकुलर ट्रेन का जो है ना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो आप अब बोलिए, अगर मैं यहाँ पर कॉइन को टॉस करूंगा और ट्रेन जो है ना एक्सेलरेट होते हुए आगे जा रही है, तो सिक्का कहां पर गिरेगा? मेरे सामने गिरेगा, मेरे पीछे गिरेगा, मेरे हाथ में गिरेगा, या नन ऑफ दी अबव? चलिए, वेदर इट फॉल्स फॉरवर्ड, और या तो ऐसा करेंगे आप, आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी, डी में से दीजिए। यू कैन टेक हियर फॉल्स इन फ्रंट, ए बी सी डी में दे दीजिए। फॉल्स इन फ्रंट, फॉल्स बैकवर्ड, फॉल्स बैकवर्ड, नेक्स्ट उसके बाद फॉल्स इन हैंड, नन। अब बताइए किसमें गिरेगा? Now I will check your answer. Once again, I am repeating the question. A person sitting in a train which is accelerating, a person sitting in a train tosses a coin which is accelerating, जो accelerate हो रहा है. So now what happens to the coin? Will it fall in front of the person, fall behind the person, fall in the hand of the person? None of the above. चलिए अब options देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या आंसर होता है। इंटरेस्टिंग वाला आंसर देखते हैं। किसी ने कहा बैकवर्ड, अरे माशाल्लाह मैक्सिमम स्टूडेंट ने बैकवर्ड कहा है। बिल्कुल सही है, बिकॉज हम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं और ये पीछे की तरफ गिरा है। प्रीवियसली मेडिकल पेपर में ऐसा सवाल पूछा गया था, राइट? डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? इफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, अगर मैं आपसे कहूं यही पॉइंट में, सो यू कैन राइट इन योर पार्ट, इफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, द कॉइन फॉल्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिरेगा। डिड यू गॉट दिस पार्ट? बैकवर्ड भी कह सकते हो या बिहाइंड द पर्सन बोल के भी कहा जा सकता है। फॉल्स बैकवर्ड या बिहाइंड द पर्सन भी पूछा जा सकता है। सेकंड वाला पॉइंट सेम, इफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, वही सेम वाला पॉइंट, उसमें आप क्या करिए, बिट नंबर 1 में इफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, बिट नंबर 2 में इफ द ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस में एमसेट में पूछा गया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आईआईटी में पूछने से ज्यादा देर नहीं लगेगा, छोटे छोटे थियोरेटिकल क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। सो इफ द ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, का कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगी, तो क्या होगा? फॉल्स फॉरवर्ड, फॉल्स बैकवर्ड, या फिर फॉल्स इन हैंड, फिर नन। कांस्टेंट वेलोसिटी से है। तो चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का इसका आंसर करेक्ट आता है। वी विल चेक दिस पार्ट। It depends on the acceleration of the train, I think so. No. If we jump, then we will go backward. I think अभी आपको concept clear नहीं है. Okay. अभी आपको concept. If we jump, then we will go backward. कौन jump करे तो backward जाते हैं? बस में से, ट्रेन में से jump करे तो same as it is. अगर आप, मैं आपका डाउट नहीं समझा, whoever is there. See, once again I am saying, if the person is sitting in the train and tosses a coin, train is moving with uniform velocity. ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो ये सामने गिरेगा या पीछे गिरेगा या हाथ में गिरेगा या कहीं भी नहीं गिरेगा। क्या मतलब नन ऑफ द अबव बोले तो सीधा क्या ट्रेन के बाहर चल जाता क्या सिक्का? नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। It depends on the acceleration. You are talking about the coin? नहीं, you are very very close. Many of the students are saying नन, किसी ने कहा है, किसी ने हाथ में गिरेगा कहा है। लेट मी से यू दिस पार्ट। मैं आपको बताता हूं, जो भी स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है, फॉल्स इन द हैंड इज द करेक्ट आंसर। कैसा सर? लिसन वेरी केयरफुली। सपोज अगर ये ट्रेन का एक डब्बा रहेगा, ट्रेन का एक डब्बा रहेगा, और यहाँ पर बंदे ने बैठे बैठे क्या किया है, उसने टॉस किया है कॉइन को। तो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो व्हाट हैपेंस जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो ये पूरा डब्बा ये पर्टिकुलर कॉइन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो ये कॉइन भी जो है ना, ये जो वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ये कॉइन भी उस वेलोसिटी से ही मूव होगा, जिसकी वजह से इट विल कम बैक इनटू द हैंड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो ये क्या होगा? दिस पर्टिकुलर कॉइन विल एक्वायर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वुडन बॉक्स। मैं वंस अगेन आई एम सेइंग, दिस पर्टिकुलर कॉइन विल एक्वायर दिस पर्टिकुलर पर्सन्स वुडन बॉक्स, जिसकी वजह से वो वापस अपने हाथ में आएगा। समझने आ रहा है? डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? लॉजिक समझने आई है?
यस, बिल्कुल सही सर। वेयर इट टॉसेस, अरे भाई बैठे बैठे आप ट्रेन में ऐसा टॉस किया है आपने, दैट्स इट। सेम केस। अभी सबको लॉजिक समझने आ गई है, फॉल इन हैंड बोलकर क्लियर है। हाँ, और एक एक क्वेश्चन जो मेरी तरफ से आपके ऊपर सवाल उठ रहा है, आप लोग देख सेम वही वाला क्वेश्चन। ए ट्रेन इज मूविंग, मतलब ए पैसेंजर इज सिटिंग इन द ट्रेन एंड ही हैज टॉसेस द कॉइन। मेरा मेरा क्वेश्चन है, ये कहीं बुक में नहीं पूछा गया है, आई एम एडिंग माय क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ये है कि इफ द ट्रेन इज, अगर ट्रेन को डिसलेरेट किया गया, डिसलेरेट, if the train is decelerated, तो कॉइन कहां पर गिरेगा? डिसलेरेटेड बोले तो मैं अभी आपको बताया है, ट्रेन को ब्रेक अप्लाई किया गया है। if the train is decelerated, तो अब कॉइन कहां पर गिरेगा? कई स्टूडेंट्स इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, इट विल फॉल फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर दिए, ट्रेन कुछ वेलोसिटी से जा रहे थे, तो वो डब्बा जो है ना, वो कॉइन क्या होता है, उसकी वेलोसिटी एक्वायर करने की कोशिश करता है, लेकिन डिसलेरेट करने की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होती है ट्रेन की, जिसकी वजह से सिक्का जो है ना बंदे के सामने गिरेगा। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको आ गया? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? हाँ, क्लियर, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। सो ये था एग्जांपल। नाउ यू राइट डाउन द साइड हेडिंग एज न्यूटन इफ द सेम कॉइन वी टॉसेस इन बस व्हेन वेयर इट गोस। सेम केस, आप ट्रेन की जगह बस ले लो, कार ले लो, बट कंडीशंस ऐसे रहना जरूरी है, ठीक है ना? हु सेड बस विल नॉट मूव इन यूनिफॉर्म स्पीड? किसने कहा है यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं जाएगी? वो कैसा नहीं जाती? अच्छा, ट्रैफिक को कंसीडर कर रहे हैं क्या? वैसा देखा गया तो रिवर बोट के प्रॉब्लम में मछलियों को कंसीडर करे तो फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं होता। करे ना रिवर बोट के प्रॉब्लम, मछलियों को कंसीडर करे, वो रिवर बोट में पूरे मछलियां रह गए तो बंदा कैसा तीर लेते जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो इसलिए वी नेग्लेक्ट द ट्रैफिक, नेग्लेक्ट द मछलियां इन दैट केस, ठीक है ना? अभी क्लियर है? डिसलेरेट मींस रिटार्डेशन। डिसलेरेट की स्पेलिंग ये है जिसका मतलब रिटार्डेशन होता है। डिड यू अंडरस्टूड? खाली थियोरिटिकल वाली क्लास है, ये खाली थ्योरी वाली क्लास है। न्यूमेरिकल्स कल आएंगे और बहुत मजा आएगा। आई होप ये पूरा पहले जर्नल फिजिक्स समझने की कोशिश करिए। अब आप रोड पे कहीं भी जाएंगे तो अरे वो बोल के वो अपने हद तक ही रख लेना, अरे यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आता, इनर्शिया ऑफ मोशन आता। सामने वाले को बोले तो क्या बोलते? पढ़ पढ़ के पागल हो गए बोल के बोलते। तो इसलिए अपने हद तक ही रख लेना, अपन ऑब्जर्व कर लेना, खुश हो जाना बस, और यहाँ पे सब्जेक्ट में एक्सप्रेस कर देना। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? आई होप यू गॉट द क्लियर आइडिया ऑफ ऑल दिस कंप्लीट पार्ट। अब हम एंटर होते हैं पहले वाले लॉ में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो आप साइड हेडिंग लिख लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है। आई होप वॉट एवर वी हैव स्टडीड सो फार, क्या आपको ये पूरा इंटरेस्टिंग दिखा है या नहीं? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। द टाइम इज आई थिंक 1 o'clock तक है शायद, as far as my knowledge. Yes, the time is still 1 o'clock. सिर्फ डायरेक्शन वाला समझने नहीं आया। डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, आप जहां पर बैठे हुए हो तो बस भी उसके पैरेलल में जाती है। बस वाला जैसा डायरेक्शन चेंज करेगा ना, तो आपकी बॉडी का डायरेक्शन स्ट्रेट जाता है असल में, रियलिटी में। तो आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए बस के कोई एक कोने को पकड़ लोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना अपने आप को बैलेंस करोगे। तो ये जो डायरेक्शन चेंज होने वाला पार्ट होता है उसे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है ना? क्लियर? 11:30 to 1 है मेरी क्लास। 11:30 to 1 इज माई क्लास। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का 2 लाइन छोड़ दीजिए, मैं खुद बनाकर अभी इंग्लिश स्टेटमेंट में बनाकर मुझे सेंड करना है। सो आई विल राइट एंड आई विल सेंड पोस्ट इट इन द ग्रुप, या आज करूंगा या वरना कल जो है ना क्लास स्टार्ट होते कि जब का जब सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? तभी आप लिख ले सकते हैं। 2 लाइन्स छोड़ दीजिए एंड यू कॉपी दिस एज यूजुअल। आई होप यू हैव कॉपीड। अब साइड हेडिंग लिख लीजिए, लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन साइड हेडिंग में यू राइट डाउन व्हाट? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसमें यू राइट डाउन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेंटर हेडिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर उसके बाद फिर उसके नीचे हेडिंग में आना है न्यूटन के 3 लॉज है, और 3 लॉ से आधी से ज्यादा फिजिक्स आपको समझने आएगी। मतलब फिजिक्स समझने आएगी मतलब ऐसा नहीं है ये करते कि पूरी फिजिक्स आ जाएगी, बट ये 3 लॉज आपको समझना बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो यू राइट ऑन द फर्स्ट साइड हेडिंग एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंप्लीटली रिलेटेबल टू द इनर्शिया। इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेबल है। तो लेट मी गिव यू दैट पार्ट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यू राइट डाउन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
इट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ही हमारे को इनर्शिया कंप्लीटली मालूम हो गया था। गैलीलियो आधे आधे बातें करके निकल गए थे, फिर न्यूटन आके वो स्टेटमेंट को पूरा जो है ना सपोर्ट करे। सो एज अ रिजल्ट उनका डेफिनेशन क्या है, आई एम सेइंग द इंग्लिश स्टेटमेंट, उसको समझने की कोशिश करिए, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन आवर लैंग्वेज। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। हर वो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या तो मोशन में रहेगी, until and unless, कब तक, जब तक उसके ऊपर आइदर एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक उसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर जो है ना मोशन में रहेगी तो मोशन में ही रहेगी, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ये दो कंडीशंस बैलेंस होके चलेंगे, एंड एज ए रिजल्ट वो लॉ को हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का यही एग्जांपल है। एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इनर्शिया एक्सप्लेन करते हुए आपको मैंने समझाया था। I have already given you the example. The example is if you take a water bottle and you keep on that particular table, or you take one book and you keep it on the table, anything, you just take it and keep it on the table, book, pen, pencil वगैरह वगैरह। अब वो कंडीशन नको सर पेंसिल में जो है ना, अगर जो है ना पेन में कैप नहीं रहा तो उन्हें नीचे गिरता ना, उसमें फ्रिक्शन वगैरह आगे लगता है, वो हम आगे देखते हैं। बट नाउ प्रेजेंटली व्हाट वी हैव टू डू, वी आर टेकिंग एनी पर्टिकुलर बॉडी एंड आई एम कीपिंग इट एट रेस्ट पोजीशन। तो वो रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा। जैसा मैंने इस मार्कर को लिया है और मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं, तो ये रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर मैं यही मार्कर को लेकर जो है ना गोल फिरा रहा हूँ सर्कुलर मोशन में, या फिर ऐसे फिरा रहा हूँ, तो ये मोशन में ही रहेगा। कब तक मोशन में रहेगा, जब तक मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा। ये कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा। तो या तो ये रेस्ट में रहेगा या वो मोशन में रहेगा। सो दैट पर्टिकुलर टर्म वी कॉल्ड इट एज इन लॉ ऑफ इनर्शिया, और वही लॉ ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। डेफिनेशन याद रखने की कोशिश करिए, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless an external force is applied on it। जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा तब तक वो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या तो मोशन में रहेगी। दैट इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्या आपको ये पॉइंट समझने आया है? क्या आपको ये पॉइंट समझने आया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? दोनों सेम है। इनर्शिया की पॉइंट क्या है, डेफिनेशन है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को इनर्शिया के डेफिनेशन को क्या करें, इन्हों जरा सजा के दिया और कुछ भी नहीं। अगर मैं बोलूं कि इनर्शिया क्या है, वही तो बता रहा हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोले तो लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहलाएगा। ठीक है ना। इनर्शिया का असल स्टेटमेंट गैलीलियो ने दिया था, जो मैंने आपको डिक्टेट किया है, इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि जिसके अंदर दम नहीं है बॉडी को मूव करना वगैरह वगैरह। लेकिन न्यूटन्स लॉ ने कहा है जब तक, अब वो तो दम नहीं है, वो इनर्शिया होगा, जब तक आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये रेस्ट पे ही रहेगा। ये हमारा जो है ना न्यूटन्स लॉ है। इनर्शिया का क्या है, इस पर्टिकुलर बॉडी में दम नहीं रहेगा, अगर ये रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर ये मोशन में रहेगी तो मोशन में ही रहेगी। वो जो दम नहीं रहेगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने वाली चीज को, वो हम इनर्शिया कहते हैं। जिसके अंदर एबिलिटी नहीं रहती उसे इनर्शिया कहते हैं। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर कर उसे मूव कर रहे हो तो वो न्यूटन्स लॉ कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन देम? इंटरेस्टिंग है, अभी समझने आया? क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। चलिए, यस आई एम डिक्टेटिंग, आई एम राइटिंग द पॉइंट बेटर, क्योंकि मैं आप इंग्लिश बोला तो एकदम फास्ट बोल देता हूँ। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी, राइट डाउन हियर, एवरी बॉडी, मिला के नहीं लिख देना, एवरीबॉडी हो जाता वो, एवरी स्पेस बॉडी, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी in the state of rest, in the state of rest or motion, in the state of rest or motion until and unless an external force is applied on it, अप्लाइड ऑन इट। जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक वो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या तो मोशन में ही रहेगी। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? एवरीवन गॉट दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? पूरे स्टूडेंट्स को समझने आया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाला कॉन्सेप्ट? पूरे स्टूडेंट्स को समझने आया है? चलिए अब हम जाते हैं द नेक्स्ट पार्ट, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमको ये एक ही डेफिनेशन लेना देना है। नाउ वी विल फोकस ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। ओके ना? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? सॉरी,
देखो आदत हो गई ऑनलाइन बोलते बोलते, अभी मेरे ख्याल से मैं लिखा बोले तो आप सीधा लिख ले सकते हो ना भाई। नाउ वी विल गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, पहले मोमेंटम पढ़ेंगे हम। मोमेंटम किससे कहते हैं, मोमेंटम समझने आ गया तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ आसानी से समझने आता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहां से हल्लू हल्लू हम थ्योरी पे बढ़ते हैं। अब वो थ्योरी क्या है देख लीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ। राइट डाउन, सॉरी, न्यूटन सेकंड लॉ से पहले आप ये लिख लीजिए, मोमेंटम लिख लीजिए। पहले वो कॉन्सेप्ट समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोमेंटम, किससे कहते हैं, एंड देन आपको न्यूटन सेकंड लॉ अच्छे से समझने आएगा इंशाल्लाह। So now let us go with this part, momentum। क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या है, फिजिक्स की लैंग्वेज में मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। वी विल डिनोट इट बाय पी, सॉरी, क्लियर है। नाउ मोमेंटम का मतलब वी डिनोट इट बाय पी। फिजिक्स की लैंग्वेज में मोमेंटम का मतलब क्या है, पहले मैं मोमेंटम समझाता हूं। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मोमेंटम में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है, मोमेंटम का मतलब है पी, और ये डिपेंड होता है या तो मास के ऊपर या फिर वेलोसिटी के ऊपर। मास और वेलोसिटी के ऊपर। अब ये दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए मैं डायरेक्ट डेफिनेशन दे सकता हूं, बट आईआईटी में हमको लॉजिक भी मालूम होना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। इफ आई एम टेकिंग वन स्मॉल ग्लास और मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा स्टोन ड्रॉप किया है, स्टोन का मास हम ले लेंगे स्मॉल एम। मैं यहाँ पर एक ग्लास लेता हूँ, एक छोटी सी ग्लास, कांच की ग्लास ले लेता हूँ, और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा स्टोन जिसका मास क्या है, स्मॉल एम, मैंने ड्रॉप किया है। ठीक है ना। अब वो ग्लास में पानी है नहीं है वो सेकेंडरी है, ड्रॉप किया। तो ये एक कंडीशन कंसीडर करिए, आई एम टेकिंग द सेम ग्लास, मैं वही सेम ग्लास ले लेता हूं, और यहाँ पर मैं बड़ा सा स्टोन कंसीडर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बड़ा सा स्टोन कंसीडर कर रहा हूँ जिसका मास कैपिटल एम है। इन बोथ द केसेस क्या होगा, स्मॉल एम क्या होगा, मास का, इन्हें इसको ब्रेक नहीं करेगा, कांच की ग्लास है ये, ठीक है ना। और ये जो है ना कैपिटल एम जो है, इन्हें इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो यानी कि मास का कुछ तो रिलेशन है, जिसका जितना ज्यादा मास रहेगा उन्हें उतना थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है ना, ओके चलो ये एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब अब मैं नेक्स्ट वाला पॉइंट फोकस करता हूँ। बुलेट मालूम है ना, जो गन के अंदर जो बुलेट आती है, अगर मैं जो है ना, मूवीज में अगर ऐसा होता था, इमेजिन करिए, अगर बुलेट लेके जो है ना ऐसा फेंक के मारते कि जो है ना जाके उसको लगती ओ बोल के ऐसा गिर जाता था। तो ऐसे जो है ना खतरनाक मूवियों में होता है, तेलुगु मूवियों में होता हुआ, उन्हें फेंक के मारा तो घोड़े तो भी चला लेके निकल जाते हैं ना, घोड़े जो है ना चलाने की जगह जो है ना गाड़ी के वैसा लेके निकलते हुए तेलुगु मूवियों में होता है, ऐसा इमेजिनेशन मत करिए। नाउ अब हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। इफ आई टेक अ बुलेट एंड इफ आई थ्रो दैट पर्टिकुलर बुलेट डायरेक्टली, मैं सीधे से फेंक रहा हूँ बुलेट को, या फिर अगर मैं गन में वही बुलेट डालकर मैं जो है ना फायर कर रहा हूँ, तो विच विल बी मोर इफेक्टिव, जो गन में डालकर जो आप फायर कर रहे हो उसमें वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, खाली फेंक रहे हो तो उसमें वेलोसिटी कम रहेगी, राइट और रॉन्ग। अगर आप यहाँ पर इसको ड्रॉप कर रहे हो छोटे मास को, तो ये ग्लास हमारा नहीं फूटेगा, और ये बड़े वाले मास से हमारा ग्लास फूटेगा। तो अब यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है, मास और वेलोसिटी का एक दूसरे का रिलेशन था। और क्या रिलेशन था, इस वाले एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो छोटा वाला मास ज्यादा तेजी से जाएगा और बड़ा वाला मास जरा हल्लू से जाएगा। तो यानी कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बोलकर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। एंड फाइनली वहां से हमको मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट आया है, जिसका डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन ये होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट रहता है उससे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल टेक हियर, इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसा डिनोट किया जा रहा है, इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको कैसा डिनोट किया जाएगा, पी से डिनोट किया जाएगा। एंड नाउ अब फॉर्मूला क्या बनता है, पी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मिलाने से जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मोमेंटम, the product of mass and velocity is defined as momentum.
Yes, mass in more in second example, the product of mass and velocity is defined as moment is defined as momentum. अब यहाँ पर अब आपने स्केलर वेक्टर तो किया है, हर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है, तो अब मोमेंटम में जो है ना स्केलर रहेगा या वेक्टर रहेगा, चलिए आप बताइए। मोमेंटम इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हमारे लास्ट 5 मिनट्स है, सॉरी 3 मिनट्स है, ये हम थोड़ा सा डिस्कशन करके कल, आज तो थ्योरी वाली क्लास थी, कल न्यूमेरिकल वाला फॉर्म हम करेंगे, ओके ना। इस मोमेंटम में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बता दीजिए, मोमेंटम स्केलर होगी या वेक्टर होगी? वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है। अरे मेरे भाई, किसी ने स्केलर किसे कहते हैं पूछ रहे हैं, वो इतना बुरा भी पैदल नहीं रहना ना। स्केलर का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। 4 किलो गोश्त लेने गए तो खाली 4 किलो गोश्त में कुछ डायरेक्शन रहता नहीं रहता, खाली 4 किलो 4 किलो, तो ये 4 एक नंबर हो गया, किलो एक यूनिट हो गया। नंबर और यूनिट को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये मैग्नीट्यूड जिसमें रहता है जिसमें डायरेक्शन नहीं रहता उसे हम स्केलर कहते हैं। वेक्टर किसे कहते हैं? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी रहता है डायरेक्शन भी रहता है। तो यानी कि आप बताइए, मोमेंटम में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, कैसे बोल सकते हो? एक सिंपल लैंग्वेज में, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर होगा। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझने आ गया है? एवरीवन गॉट दिस पार्ट? अब यहीं पर इसके ऊपर एक पॉइंट लिख लीजिए, यूनिट्स। अगर आप जो है ना क्या करोगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल यूनिट्स किसे कहते हैं वो भी सवाल आएगा, तो जवाब दे दे रहा हूँ। अगर आप जो है ना दुकान पे जाके 1 लीटर शक्कर दियो बोले तो क्या करता हूँ, चप्पल निकाल के मारने आता बेचारा अपने को, राइट और रॉन्ग? सो ही विल टेक आउट हिज स्लीपर एंड ही विल ट्राई टू जो है ना बीट। अगर 1 लीटर शक्कर बोलोगे तो 1 किलो की जगह 1 लीटर शक्कर बोलोगे तो, राइट और रॉन्ग? सो क्या होगा, एवरी पर्टिकुलर क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन द रेस्पेक्टिव यूनिट्स। हर पर्टिकुलर क्वांटिटी को उनके यूनिट्स में एक्सप्रेस किया गया है। तो लिहाजा हम शक्कर को किलो में लेते हैं, माउस को डजन में लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है जो फिजिक्स का मेन जो है ना मेन जड़ है। एक्चुअली इससे पहले 3 तरीके के अलग अलग सिस्टम्स थे, एफपीएस बोल के था, एमकेएस बोल के था, सीजीएस बोल के था। ब्रिटिश वाले अपना सिस्टम बोलते थे, फ्रांस वाले अपना सिस्टम बोलते थे, और क्या बोलते हैं अपना यूएस वाले अपना सिस्टम बोलते थे। तो ये ओवरऑल ये तीनों में क्या हो जा रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा था। इनकी बात नहीं सुन रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे। तो एक फ्रांस में एक कमेटी बैठी थी जहां पर तीनों मिलकर जो है ना ये बताए कि हम पूरा जो है ना एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के हिसाब से जाएंगे। इसलिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के हिसाब से मास जो है ना हम केजीस में लेते हैं। फ्रांस की लैंग्वेज में जो है ना उनके पास जो मेजरमेंट होता है मास को पाउंड्स में लेते हैं। इसलिए आप WWF में देखो 598 पाउंड्स बोल के ऐसा जो बोलता है ना, पाउंड्स आर द यूनिट्स ऑफ मास ओनली। समझने आया है? तो इसलिए ओवरऑल ये पूरा प्रॉब्लम होने की वजह से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ने आकर एक स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए हैं, और वो यूनिट्स के हिसाब से हर एक फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट दिया गया है। उस हिसाब से हमारे मोमेंटम का भी यूनिट है। तो ये यूनिट रटने का नहीं है, लॉजिक समझने का है। मास को किसमें दिया गया है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के हिसाब से? ये केजी दिया है, और मीटर के जो यूनिट्स होते हैं मीटर्स पर सेकंड लिया जाता है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो केजी मीटर सेकंड पावर -1। दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का जो है ना खाली जो है ना ये पूरे क्या होते हैं, यूनिट्स। अगर आप जाके दुकान पे भाई एक शक्कर दियो ना बोले तो क्या समझेंगे उन्हें? एक शक्कर दियो बोले तो कुछ भी समझने नहीं आता, इसलिए 1 किलो बोलना जरूरी है। उसी तरह फिजिक्स में जब कभी भी मैं मोमेंटम बोलूंगा तो 4 मोमेंटम नहीं बोलूंगा मैं, 4 kg मीटर सेकेंड इनवर्स, 4 kg मीटर सेकेंड इनवर्स, या 4 kg मीटर पर सेकेंड भी कह सकता हूं मैं। डिड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स? क्या आपको यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट समझने आया है? यूनिट्स किससे कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल किससे कहते हैं, सबको समझने आ गया ना? हाँ। अब इसके बारे में अब कभी भी यूनिट्स में बोलूंगा, आगे चल के फोर्स बोले तो 4 फोर्स बोल के नहीं बोलूंगा, फोर्स के भी कुछ अलग यूनिट्स आते हैं, तो आप उसके हिसाब से समझ जाना चाहिए। तो ठीक है, आज हम हमारी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। सो वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज थियोरेटिकल क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। सो आई एंजॉयड लर्निंग विथ यू पीपल टुडे, होप यू आल्सो एंजॉयड द सेम। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। थैंक यू।